स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे DUET जॉलजी 2020 के क्वेश्चंस जो कि NTA ने आंसर की निकाली है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलते हैं। Which one of the following amphibian has partial interventricular septums in heart? Generally जो amphibians होते हैं they do not have interventricular septums except lungfish, that is siren. In the case of siren, there is a partial partitioning is there so that their oxygenated and deoxygenated blood do not mix, and that's where it is an exception. In rest of the amphibian, this septum is not present, so answer A has to be correct. Yes, it is. Female anopheles can be distinguished from female culex. ये कल क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। इसका आंसर होगा एट एन एंगल विद सबस्ट्रेटम। आपको एक्सप्लेनेशन टेबल में दिया हुआ है, कल वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, तो आंसर हैज टू बी ए। Which part of the middle ear transmits sound vibration to fenestra rotunda of internal ear? चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, whenever the sound waves comes through external ear and it hits the eardrum, it transmit the vibration to the three middle ear bones, which works in tandem, starting from malleus to incus and to stapes. Stape internal ear से connected होता है through a window, जिसको हम बोलते हैं fenestra ovalis या oval window. From here, this vibration are passed in the inner ear and through entire length of a cochlea from scala vestibula through scala tympani, it further hit the another window of middle ear, and that is fenestra rotunda या round window. From here, the sound vibration which are extra, they are being released in the tympanic cavity of the middle ear. So answer इसमें obviously होगा stapes, because it is the last middle ear bone which hits the cochlear window, that is fenestra ovalis, and through which it is being connected to the or transmitted to the fenestra rotunda. So answer has to be A. दोस्तों, third chamber in the stomach of a ruminant mammal. Generally stomach एक ruminant mammal का जो होता है वो 4 chambered होता है, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो फूड इसमें एंट्री करता है rumen में पहले, फिर it goes to the reticulum followed by ओमेसम। ये जो तीनों चैम्बर्स हैं, rumen, रेटिकुलम एंड ओमेसम, दे आर फर्मेंटेशन चैम्बर्स, और यहाँ से ये फाइनली एबोमेसम में जाता है, जो कि एक ग्लैंडुलर स्टमक है, एक टिपिकल कार्निवोर का जो स्टमक होता है उसकी तरह, जहाँ पे कि केमिकल डाइजेशन होता है फूड का, एंड फ्रॉम हियर आफ्टर डाइजेस्टेड फूड इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आप सीक्वेंस देखें, rumen, रेटिकुलम, ओमेसम, ओमेसम शुड बी द करेक्ट आंसर। ओमेसम is the third chamber of the stomach of a ruminant mammal. Yes, it is. आगे चलते हैं दोस्तों। Which of the following continent is included in the neotropical faunal realm? On this earth there are 8 biogeographical realms are there, out of which neotropical faunal realm is best known because of their tropical rainforest, and it is present in the entire length of South American continent and Central American continent link, where it connects with the North American continent, Caribbean islands, and some part of the southern North American continent. So these area is being different from the upper North American realm, which is called Nearctic realm. In the history, they were two different and not connected, and that's where their fauna are a bit different. तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। होल ऑफ द साउथ अमेरिका कम्स अंडर न्यूट्रॉपिकल फॉर्नल रियाम, और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन रेन फॉरेस्ट इसी एरिया में मिलते हैं।
डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है इवोल्यूशंस में और इसको पूछा जाता है, लोअर क्लासेस से आप इसे पढ़ते आए हैं, दैट अडेप्टिव रेडिएशंस जो है वो डार्विन फिंचेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। हुआ क्या था, जब डार्विन हैज विजिटेड गैलापागोस आइलैंड एंड रिटर्न बैक टू द लंडन, ही कलेक्टेड सर्टेन फिंचेस, he thought they are the new species, and when he discussed the experts, they said no, they are again a passerine birds or finches, but they are a bit different. And from here he proposed a concept of adaptive radiations, where a common ancestor might have evolved from about 2 million years ago, and due to the challenges of food habit, different niches, environmental strain, they have developed themselves into different types of 15 passerine forms, and that's where they are the best example of adaptive radiation, because they have radiated from a common ancestor because of adaptation. A novel phenotype trait that helps in success of a taxonomic group and its subsequent radiation is called, इस फिनोमेना को हम की इनोवेशन कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, एक नोवल फिनोटिपिक ट्रेट जो होता है वो एक सक्सेसफुली अपना ट्रांसमिट करता है अपनी जनरेशन्स को, और वो आफ्टर ऑल डेवलप होती हैं, फ्रूटिफाई होती हैं और डेवलप होती हैं और अल्टीमेटली एक पूरा का पूरा क्लेड या स्पीशीज बनाना शुरू कर देती हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ अ नोवल फिनोटिपिक ट्रेट उनको एक एडवांटेज मिलता है, और इस कॉन्सेप्ट को 1949 में मिलर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका आंसर होगा की इनोवेशन। द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्सटिंक्शन इवेंट, इसको हम जानते हैं, जैसे डायनासोर का एक्सटिंक्शन को हम केटी पीरियड भी बोलते हैं। केटी रिप्रेजेंट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ टर्शरी पीरियड, which must have happened around 65.5 million years ago. Because of the certain reason, the dinosaurs, whole of the community have perished because their food were not available and they were not able to adapt according to the changing environment, and that's where the answer has to be end of Cretaceous period. Next question है, presence of which of the following is an important evidence for organic evolution? यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इवोल्यूशन में। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट होमोलोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन दे एक्चुअली कैन बी यूज्ड टू ट्रेस आवर हिस्ट्री, एंड दैट्स वेयर दे सजेस्ट दैट यस वी हैव इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स which have a same architecture, skeletal network, but being adapted for different functions. If we see the bat's wing, our hand and whale's flipper, they all have the same bone arrangement, but they all are used for a different purposes. If we are having same skeletal architecture, that means our ancestor must be common. On the other hand, vestigial organ, how it can be used? Vestigial organs are those organs which are not useful in certain forms of life but remain useful in the past. That means अभी भी हमारे अंदर है but हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं, but in past it was useful and even in some other species it is useful. अगर कोई ऐसा organ जो कि औरों में present है, they are using but we are not using, that means it is not required right now in us, and that's where it is one of the connecting link which suggests that we had a common ancestor. Homologous and vestigial organ must be the correct answer. Yes, it is. Bergman rules refers to a general tendency of mammals to be. बर्गमैन का जो रूल है उनका एक बहुत सिंपल सा रूल था, उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी मैमल्स को लेके स्पेशली, कि जितने भी कोल्डर एरियाज होते हैं वहाँ के इनहेबिटेंट्स जो पॉपुलेशन है वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जबकि जो वार्मर एरियाज हैं वहाँ पे रहने वाले इनहेबिटेंट्स पॉपुलेशन जो है, ह्यूमंस जो हैं, उनका साइज छोटा होता है। काफ़ी अच्छे से बर्गमैन रूल एक्सटेंड हो जाता है ह्यूमन पॉपुलेशंस पे, एंड दैट्स वेयर इन द प्रेजेंट केस
Bergman rule refers to the general tendency of mammals to be larger in size in colder areas of their distribution. Answer A सही होगा दोस्तों. Yes it is. क्वेश्चन है which of the following statement is true? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. देखते हैं. Evolution is goal oriented. ये गलत होगा. Evolution is always random. It throws the possibility of having different types of variations. Those who are naturally fit according to the changing environment, they are being selected as the future prospects, future progeny, while those which are not required, which cannot cope up with the changing environment, they are being rejected. Evolution हमेशा random चलता है और होना भी चाहिए, इसकी वजह से हमें different permutation combination मिलते रहते हैं. Second है mutations are always harmful. ये भी नहीं होगा. Mutation बहुत सक्सेसफुल है, and in fact mutations and crossing over during recombination, they are the two root elements for evolution, for variations, because they both provide variations of the population which can be chosen for the future. Speciation always require geographical isolation. ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है. स्पीशिएशन के लिए geographical isolation चाहिए होता है, but sometimes what happens is within a species, because of the natural preference for mating, a different species may emerge out which are reproductively isolated. तो हम कह सकते हैं कि स्पीशिएशन के लिए geographical isolation एक important factor है, but not the wholesome. यानी कि बिना geographical isolate हुए भी speciation करा जा सकता है, and that's where this answer will not be correct. Variations are necessary for natural selection. ये बिल्कुल सही होगा, because अगर आपके पास permutation combination नहीं होंगे, if you will not have the large variation, you can't find out, you cannot handpick the right or naturally fit organism for the future. Variation जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से इवोल्यूशन होता है, उतने ही अच्छे से नेचुरल सिलेक्शन होता है. दैट मीन्स आंसर सी हैज़ टू बी करेक्ट. यस इट इज. आगे चलते. फिलॉसफी जोलॉजिके वाज रिटन बाय, दिस बुक वाज रिटन बाय जीन बाप्टिस्टे लेमार्क, इन विच ही डिस्कस्ड हिज concept about evolution, especially what we better known as Lamarckism. So answer has to be B. Question है, within a small population, variation can occur in gene frequency by chance event rather than natural selection. At times what happens is, if you have a populations where different types of individuals are there, having different genetic makeup, sometimes what happens is during mating there is a natural affinity, natural selection, personal choice, personal preference is decided what will be the fate of this species in future. Suppose an individual like bright colored individual as his or her mate, and that's where naturally it will pick that particular person for mating, and that's where this personal preferences may change the all over makeup of the species in later, and this is purely chance event, and this phenomena is known as Sewall-Wright effect or genetic drift. So answer C has to be correct. चलते हैं. Monarch and Viceroy butterfly are an example of. ये मिमिक्रीज आपको दे रखी है, मुलेरियन, बेटेसियन, पेखाइमियन एंड वेविलोवियन. जैसा कि हम जानते हैं मुलेरियन एंड बेटेसियन दे आर डिफेंसिव मिमिक्री. इन द केस ऑफ बेटेसियन मिमिक्री व्हाट हैपेंस इज एन इंडिविजुअल ट्राई टू मिमिक another species in appearance so that it can be defended, because to whom it is going to mimic or idealizing, that is dangerous. So predators knows that this individual need not to be attacked, and that's where the sensitive prey also gets benefited. In the case of Mullerian mimicry, unlike Batesian mimicry, all individual
they express their true signals, that means all are let us say all are dangerous, by expressing their bright color on their appearance, and that's where all of them in totality gets a benefit, because predators knows whosoever is bright colored, they are not to be consumed. So this is called Mullerian mimicry. Pachymian mimicry, on the other hand, is an aggressive type of mimicry, which we can discuss it later in some other lecture. Viceroy butterfly, what happens is it mimic monarch butterfly in order to get saved, because monarch butterfly are toxic to be consumed, and that's where birds knows that monarch butterfly, if it is being seen, it not to be eaten. In this chance event, if butterfly by any chance sees Viceroy butterfly which is mimicking the monarch butterfly, that is also saved. So answer has to be B, Batesian mimicry. क्वेश्चन है द हार्मोन विच कॉजेज मोल्टिंग इन आर्थ्रोपोड्स. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है. एक्डाइसोन, एज वी नो, एक्डाइसोन को मोल्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, तो आंसर होगा बी, एक्डाइसोन. एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन रेड ब्लड सेल. जैसा कि हम जानते हैं रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो होता क्या है, जो आपका पायरुविक एसिड है जो बनता है वो नॉर्मली जहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चैनलाइज हो जाता है थ्रू एसिटाइल कोए एंड NADH एक और प्रोड्यूस हो जाता है, वहीं सिंस RBC डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, तो दिस पायरुवेट कैन नॉट बी चैनलाइज्ड एज एन एसिटाइल कोए. एंड वन मोर थिंग, previously generated NADH is forcing this molecule to change into lactate by the lactase dehydrogenase. इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा लैक्टिक एसिड, जो कि RBC में होता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन हमेशा जनरली आते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए. विटामिन्स में भी ये क्वेश्चन आया है, आपको हमेशा एज्यूम करना चाहिए जहां पे भी आपके मल्टीपल ऑप्शंस हो, टेबल बना सकते हो, वहां पे आप एक्सपेक्ट करिए मैच द फॉलोइंग आएगा ही आएगा, और इसीलिए आप अपनी कोशिश करिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे के आने वाले एग्जाम्स के लिए करते रहें. ओके, इसमें हमें देखना है विटामिन्स जो हैं उनको दे रखा है और उनको मैच कराना है. बहुत ही सिंपल है. एज वी नो, विटामिन के हेमरेज डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कराता है, तो ए का ऑप्शन होना चाहिए सेकंड के साथ. बहुत ही अच्छा, सिर्फ डी में है ये ऑप्शन, इसलिए आंसर डी होगा. बाकी के आप चाहे तो देख सकते हैं. इस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प हो जाए. हम अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ इस तरह की टेबल या फ्लो चार्ट्स ऐड करते रहेंगे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और एनहांस हो जाएगा. फ्लैश कार्ड के तौर पे आप यूज कर सकते हैं उनको. आगे चलते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फिक्स्ड लेंथ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA मेल्टिंग टेम्परेचर इज. जैसा कि हम सब जानते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे 50% DNA पॉपुलेशन इज बीइंग डीनेचर्ड और ओपन, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट जाती है 50% पॉपुलेशन की. जैसा कि हम जानते हैं GC ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि AT डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है. सो लॉजिकली GC will contribute more to the melting temperature than in comparison to AT. तो टेम्परेचर मेल्टिंग वाला जो है DNA का, वो बहुत ज़्यादा GC कंटेंट डिसाइड करता है, एंड दैट्स वेयर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द GC बेस्ड कंटेंट. आंसर ए हैज टू बी करेक्ट. एट pH वैल्यू ग्रेटर देन pK ऑफ COOH ग्रुप इन द अमाइनो एसिड, द अमाइनो एसिड विल बी. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एंड एक टिपिकल बायोलॉजी स्टूडेंट जनरली इन टॉपिक से डरता है और इसलिए वो इनको छोड़ भी देता है. हम आज आपको समझाते हैं, जब भी कोई चीज़ पीके पे होती है तो वो हाफ आयोनाइज्ड होती है, हाफ अनआयोनाइज्ड होती है. और अगर आप उस केमिकल को उसके पीके वैल्यू से ज़्यादा पीएच पे रख देंगे तो आयोनाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है. अब जरा देखते हैं, COOH को अगर हम हाई पीएच पे रखेंगे उसके पीके से, तो ऑब्वियसली इट विल टर्न डाउन टू बी COO माइनस. ऑन द अदर हैंड, प्रोटोनेटेड NH3 ग्रुप को अगर हम NH3 पॉजिटिव को हाई पीएच पे रखेंगे तो इट विल लूज अ प्रोटॉन
आयोनाइज होगा, 8 प्रोटॉन लूज कर जाएगा एंड देन इट विल बिकम NH2. तो ओवरऑल चार्ज अमाइनो एसिड पे आ जाएगा नेगेटिव एंड हेंस आंसर बी हैज टू बी करेक्ट. यस इट इज. अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द मसल सेल्स. कैल्शियम जनरली मसल सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, विच इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जस्ट लाइक अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ रूटीन सेल्स, एंड जो कि कैल्शियम को स्टोर करते हैं. मसल एक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, एंड दैट्स वेयर आंसर बी हैज टू बी करेक्ट. उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन. अगला क्वेश्चन है, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल्सो इन ग्लाइकोलिसिस. सही बात है. एक बार रोक के देखिए वीडियो, कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं ग्लाइकोलिसिस में और कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं इंडिविजुअली माइटोकॉन्ड्रिया में. एक बार कैलकुलेट करके रखिएगा, अपने पास लिख कर भी रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं. ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय. यहां पे मतलब है कि एटीपी किस स्टेप्स पे होता है. जनरली 1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इन मॉलिक्यूल का थर्मोडायनेमिक प्रोफाइल जो है वो एटीपी से ज्यादा होता है. दैट मीन्स दे हैव अ कैपेसिटी टू रिचार्ज एटीपी एंड दैट्स वेयर आप देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल के बाद ही एटीपी जनरेट होगा, 1,3 बीपीजी के बाद और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो टर्मिनल ग्लाइकोलिटिक इवेंट है उसके बाद. तो इसलिए आंसर डी हैज टू बी करेक्ट. बिल्कुल. फ्रक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू द. फ्रक्टोज इंटॉलरेंस जो होता है वो एल्डोलेज बी एंजाइम की वजह से होता है, और जिनमें भी ये डेफिशिएंसी होती है या रिड्यूस प्रोडक्शन होता है, दे डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया इफ दे कंज्यूम फ्रक्टोज और सुक्रोज विच ऑल्सो हैज अ फ्रक्टोज बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट फ्रक्टोज. तो इसका आंसर होगा सी, एल्डोलेज. अगला क्वेश्चन है, in the presence of oxygen glycolysis is suppressed and it is called. बड़ा ही सिंपल सा इफेक्ट है, पास्चर इफेक्ट है. पास्चर हैज ऑब्जर्व टू थिंग्स related to glycolysis. First, that aerobic respiration is more rewarding in terms of energy as we know because इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ATP कहीं ज़्यादा सिंथेसाइज होते हैं in comparison to anaerobic respiration. And the second thing which he observed is that oxygen की प्रेजेंस में जो ग्लाइकोलिसिस है वो सप्रेस कर दी जाती है, ये सप्रेस हो जाती है. स्पेशली ही सॉ दिस इफेक्ट इन द ईस्ट, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन पे. इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी बनेगा, साइट्रेट बनेंगे, और ये जो मॉलिक्यूल है ये इनिबिट करते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को विच इज द थर्ड स्टेप एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस आगे नहीं हो पाती है. पास्चर इफेक्ट जो है वो इंडस्ट्री में बड़ा यूज होता है बिकॉज अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन कराना है, प्लीज डू नॉट प्रोवाइड द ऑक्सीजन. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यू विल गेट एल्कोहल्स, बट इफ यू वांट टू कल्चर मोर ऑफ ईस्ट पॉपुलेशन देन आपको उनको एरेट करना पड़ेगा, अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि उनका जो मास है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में फोर्स हो और उनका मास जो है वो बढ़े. तो इंडस्ट्री में इस तरह से पास्चर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस ऑब्जर्वेशन से. सिंपल ऑब्जर्वेशन बट हैज अ इमेंस इंडस्ट्रियल वैल्यू. सो आंसर सी हैज टू बी करेक्ट. अगला क्वेश्चन है, What is the pH of a solution whose hydrogen ion concentration? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको pH निकालना है. pH का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? माइनस लॉग प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन. प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है. जनरली क्वेश्चन को छोड़ देंगे बच्चे बिकॉज उनको लगेगा लॉग कौन देखे. देखिए हम लॉग की वैल्यू यहाँ पर बहुत सिंपल सी नोन जो वैल्यूज होती हैं आप याद रख लीजिए. log 2 की वैल्यू याद रखिए, log 3 की वैल्यू रखिए, log 5 की वैल्यू रखिए. बस आपके मैक्सिमम क्वेश्चन pH के सॉल्व हो जाएंगे विदाउट कैलकुलेटर. तो यहां पे log 3.2 की जगह हम log 3 भी रखते हैं तो किस तरह से हमारा आंसर आएगा देखिए. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग प्रोटॉन, वैल्यूज रख दी. जब इसको एक्सपेंड किया तो ये जो -4 है पावर वो आगे आ जाएगी.
जबकि log 3 हम मान के चल रहे हैं 3.2 की बजाय, बिकॉज हमारे पास हम एज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो log 3 की वैल्यू 0.47 या 0.48 आप रख सकते हैं एज्यूम करके। 4 में से 0.47 माइनस करेंगे तो 3.53 आंसर आ रहा है, विच इज मोर क्लोज टू ए, हेंस आंसर ए हैज टू बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, द डिटेक्शन ऑफ restriction fragment length polymorphism relies on a specialized technique called, जैसा कि आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन RFLP जो होता है वो डीएनए के केस में किया जाता है, जहां पर कि अगर हमें दो सीक्वेंस को कंपेयर करना हो तो हम पहले उनका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे और बाद में हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालिसिस होती है सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू, बिकॉज इसके अंदर रेस्ट्रिक्टिवली डाइजेस्टेड जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ब्लॉट किया जाता है एंड हाइब्रिडाइज किया जाता है बाय अ स्पेशलाइज्ड डीएनए प्रोब, तो इसलिए आंसर होगा सदर्न ब्लॉटिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस एसाइल एंड मेलोनाइल ग्रुप्स, ये टिपिकल फैटी एसिड बायोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में आप अपने आप देख सकते हैं जो मेलोनाइल कोए एंड एसाइल एसीपी दोनों का जो कंडेंसेशन है वो बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेटेज करता है, जो कि फोर्थ एंजाइम है। मेलोनाइल कोए एसीपी ट्रांसफरेज जो है वो मेलोनाइल कोए पे एसाइल कैरियर प्रोटीन का ट्रांसफर कराता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज, इसलिए आंसर होगा डी। आगे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस इसेंशियली रिक्वायर कोएंजाइम। ट्रांसअमाइनेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक इंपॉर्टेंट रूट है, जिसमें कि एक अल्फा अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक अल्फा कीटो एसिड्स पे, और ये रिएक्शन कराते हैं ट्रांसअमाइनेजेस, जो कि सारे के सारे विटामिन B6 डिपेंडेंट होते हैं। विटामिन B6 मींस pyridoxal phosphate, इसलिए आंसर होगा सी। Which of the following trisomy has a mildest effect on human development? जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल में 47XXX ट्रिपल एक्स सिंड्रोम बोला जाता है इसको। इट हैज द मिनिमल इफेक्ट एंड थैंक्स टू द लायोनाइजेशन प्रोसेसेस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जनरली females which are suffering from this disease they are taller, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता इन कंपैरिजन टू अदर सिंड्रोम्स। आप प्लीज़ इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आंसर होगा ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, दैट मीन्स एक्स एक्स एक्स। बाकी के जो दो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको बार बॉडी बना दिया जाता है और इसलिए इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व होता है। मसल फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी कॉज अ GSD, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। दोस्तों कुछ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पे ये क्वेश्चन आते हैं, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, अपने निमोनिक्स याद कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि मैकार्डल जो है M स्टैंड्स फॉर मसल्स, आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, H स्टैंड्स फॉर हिपैटिक, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और इसीलिए आप मैकार्डल डिजीज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंसी। याद रखिएगा GSD नेम जो है ये साइंटिस्ट के नाम के बाद में दिए हैं और इसीलिए इसका आंसर होगा मैकार्डल डिजीज और ऑप्शन ए। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए होंगे। बहुत ही जल्द एक और वीडियो आएगा जिसमें कि बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसी तरह से अपना प्यार बनाइए रखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनको देखने का मौका मिले। बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रायर पे मिल जाए। इसमें हम और कंटेंट पे काम कर रहे हैं और आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।